ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत हुई। 2021 में ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी लगभग $2.2 ट्रिलियन थी। IMF का अनुमान है कि 2023 में ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था 1.6% की दर से बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया फिर से अन्य अर्थव्यवस्था से बेहतर प्रदर्शन करेगा। 2023 में ऑस्ट्रेलिया में सरेराश वेतन 6,000 लगभग AUD प्रति माह है। रोजगार वृद्धि के साथ साथ उत्पादकता में सुधार करके हमने अपनी अर्थव्यवस्था में सुनिश्चित की है। डिजिटल तकनीक को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने से ऑस्ट्रेलिया की वार्षिक GDP की वृद्धि दर 0.7% से 1.2% तक बढ़ने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया कच्चे माल का निकास $1,45,415 मिलियन करती है। उत्पादक हिस्सेदारी 59.34% है। ऑस्ट्रेलिया कच्चे माल का आयात $9,194 मिलियन है। उत्पादक हिस्सेदारी 4.34% है। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड लीडर्स, आई एम द गवर्नर मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में 87% नौकरियों के लिए कर्मचारियों के पास डिजिटल कौशल होना आवश्यक बना है और 2030 तक देश को अन्य लगभग 28,000 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। ऑस्ट्रेलिया का $167 बिलियन का तकनीकी क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। 2023 से 2024 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार अधिकारी विकास सहायता यानी कि ODA में $4.77 बिलियन प्रदान करेगी। 2023 से 2024 का बजट अक्टूबर 2022 से 2023 के बजट में $1.4 बिलियन को प्रोत्साहन पर आधारित है। सर्वेक्षण में लगभग 80% स्टूडेंट्स ने यह बताया है कि विदेशी अध्ययन अनुभव के लिए ऑस्ट्रेलिया उनकी पसंद का देश है। ऑस्ट्रेलिया का व्यापार सबसे बड़ा चीन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप में मशीनरी और परिवहन उपकरण आयात करता है, जिसमें सड़क वाहन 12%, औद्योगिक मशीनरी 6%, विद्युत मशीनरी 5% है। देश की प्रदूषण मुक्त हवा प्राकृतिक परिस्थिति के तंत्र रहने के लिए एक आदर्श स्थान ऑस्ट्रेलिया बना है। थैंक यू। Seasons a year, that is wet and dry seasons with no extreme summer or no winter, Indonesia is excellent spot for tourists. Indonesia has mixed economy in which private and government sector plays a vital role. It is the only G20 member state in Southeast Asia and is an archipelago and is classified as newly industrialized country. Services are the main economic factors that provide the country's largest economy. Services provide 43.4% of GDP, followed by industry with 39.7% and agriculture with 12.8% GDP. Earlier, agriculture was the main sector, but due to the urbanization and industrialization, services have overtook it, which resulted in decrease in our poverty rate from 60% to 15%. Poverty is the main problem of Indonesia, due to which unemployment and illiteracy take place. But because of the service sector, we have nullified the effect of poverty. Indonesia has the following primary industries like tourism, paper products, petrol, fishing, etc. and main agricultural products like rice, coffee, rubber, which makes a large portion of country's export, with coal and palm oil as leading export commodities, which help to strengthen global trade and foreign affairs. Indonesia's GDP maintained its favorable growth at 5.03% in first quarter of 2023, and our country has been regarded as third fastest growing economy in Asia, and we would like to work with this progress only. Good morning to all the respected sir and ma'am present here. I am the Governor of Indonesia. As the Governor, the main agenda for Indonesia is climate-based economy. Indonesia fit in the agenda because it is a really very good country at complying the climate and natural resources. To convey the vision in an effort to create a livable and sustainable future. Sustainable future सतत विकास, including plans to dealing with global disruptions, वैश्विक व्यवधान. The theme of this conference is very interesting in relevant to the current situation, leadership, resilience and creativity. इंडोनेशिया ने क्लाइमेट बेस्ड इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए नॉर्म्स लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट
पहले emissions are being reduced through improved land use. Indonesia aims to reach net zero emissions in forestry and other land use by 2030, which will make a major contribution to the Indonesia enhanced NDC target. NDC target means National Development Council, Rashtriya Vikas Parishad. As I talked before, Indonesia is full of natural resources, so the energy sector is expected to become the largest contributor to GHG emissions by 2030 by create more space for renewable energy, investment in the power system. Economy wide actions, हमने जो economy wide actions लिए हैं, सबसे पहले फॉरेस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर इंडोनेशिया ट्रांजिशन वुड बी बेनिफिट फ्रॉम फर्दर। नंबर 1, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। टाइम आपका खत्म हो रहा है तो आप प्लीज अपना स्पीच रख सकते हैं। Fiscal policy that includes carbon pricing and energy subsidy reform. Thank you. तो सबसे पहले बात की जाए चाइना की, तो चाइना यूएन में परमानेंट मेंबर है और इकोनॉमी की वजह से चाइना के लोगों का रहन सहन और टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। चाइना सोशलिस्ट सिस्टम को लेकर बहुत तरक्की कर रहा है और उसके क्लाइमेट इश्यूज ये है कि चाइना एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा आगे, वो दूसरा स्थान लेता है दुनिया में एज अ ग्लोबल वर्ल्ड। और डोमेस्टिक कचरा, फार्मिंग का कचरा और इंडस्ट्रियल कचरा पानी से मिक्स होता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। एयर पोल्यूशन की बात की जाए तो बर्निंग ऑफ कोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और उससे एयर पोल्यूशन होता है। लगभग 70% नदी और दरिया हानिकारक है इंसानों के इस्तेमाल के लिए। और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब फॉरेस्ट का कम होना और जानवर बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है जिससे उन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जैसे कि आपने सुना चाइना के क्लाइमेट इश्यूज बहुत से, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी चाइना ने अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए क्या क्या कर दिया है। चाइना ने कार और कोल का प्रोडक्शन कम कर दिया है कुछ शहरों में, बायोडाइवर्सिटी पर फोकस किया है और 34,687 एनिमल्स और बर्ड्स चाइना को 3rd पोजीशन पर लेके जाते हैं वर्ल्ड में, वो भी बायोडाइवर्सिटी कंट्री के बेस पे। हवा की बात की जाए तो चाइना ने आयरन और स्टील को बनाना कम कर दिया है और कोल को यूज़ भी कम कर दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि सोलर टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा। फ्यूचर प्लान्स चाइना के ये है कि चाइना 2050 तक 28% ग्लोबल इकोनॉमी कंट्रोल करेगा और प्रेसिडेंट जिनपिंग यानी मैंने ऐसा ऐलान किया था कि 2060 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल कर देंगे कंट्री। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इन्वेस्ट किया जाएगा जिससे ह्यूमन और क्लाइमेट दोनों का भला होगा और ये भी गोल है कि नॉन फॉसिल फ्यूल को इंक्रीज किया जाएगा और फॉरेस्ट एरिया पर एक्सपांड किया जाएगा। तो ये भी हमारी क्लाइमेट की चाइना की क्लाइमेट कंडीशन रिसेंट और फ्यूचर प्लान्स। तो उम्मीद है कि आपको हमारी स्पीच पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू डेलीगेट। सर रिपब्लिक ऑफ कोरिया को एक क्वेश्चन है, जी आप पूछ सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि चाइना में एयर और वाटर पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? मैंने रीज़न भी बताया था कि डोमेस्टिक पोल्यूशन और फार्मिंग इंडस्ट्रीज का कचरा पानी से मिक्स होता है, इसीलिए वाटर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन कोल और स्टील की बर्निंग की वजह से। उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन है कि आपकी कंट्री क्यों इतना रूड है और कितना पीछे चलता है ट्रेडिंग पॉलिसी में? तो हमारी कंट्री भी रूड है ट्रेडिंग पॉलिसी के लिए, ये क्वेश्चन है। हाँ, तो चाइना इसीलिए रूड है क्योंकि चाइना के पास इतनी पावर है। पावर तो रशिया के पास है, फिर वो लोग क्यों है? वो भी रूड है। हाँ, पर उन लोग का लाइफस्टाइल अलग है चाइना से। एक्सक्यूज मी डेलीगेट्स, एग्जाम डेकोरम मेंटेन करें थोड़ा सा। आप दोनों के लिए वार्निंग है, प्लीज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें। और कोई क्वेश्चन? सर जो चाइना ने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा उसका मैंने आंसर देना चाहूँगा कि जब
जापान और बचत को कम कर रही है, तेजी खप को कम कर रही है, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं में कमी और रिकॉर्ड उच्च ऑर्डर बैंक लाभ के कारण 2023 तक निर्यात वृद्धि में सुधार होगा। जर्मनी ने लोगों की आमदनी कम करने के लिए और कराधान को कम विकृत करों की और स्थानांतरित करने से कार्य प्रोत्साहन में सुधार होगा और कर प्रणाली की दक्षता में वृद्धि निजी क्षेत्रों को हरित संक्रमण में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। थैंक यू। हम राज्य को से जिम्मेदारी को बढ़ावा देने, विकास को प्रोत्साहित करने और सभी के लिए अवसर पैदा करने के लिए अथक प्रयास करेंगे। साथ मिलकर हम एक समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। आप बोलेंगे? That's it. I am Governor of Japan. हम आज यहाँ गंभीर निवेशन नीतियों को समाधान करने उन सहयोग को बढ़ाने देने और समावेश आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथ ही हम यहाँ पर सहयोग कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। Next in the list we have Republic of Korea. Chair चाहता है कि आप अपना स्पीच शुरू करें। Good morning everyone. I am representing the Finance Minister of South Korea. Good morning everyone. I am representing South Korea's finance minister. आज हम साउथ कोरिया के बारे में बात करने वाले हैं। साउथ कोरिया एशिया के मशहूर देशों में से एक है जिसकी संस्कृति, विकास और डेवलपमेंट अद्भुत है। हमारे देश का कैपिटल सियोल है। साउथ कोरिया का इतिहास 1000 सालों से भी पुराना है। यह देश 1948 में आज़ाद हुआ और जब इसका नाम लार्जर मिंग्यू रखा गया। हमारी कंट्री वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड चल रही थी, लेकिन 1960s में कंट्री का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ। यह एक चौंका देने वाली बात है कि हमारी कंट्री ने अपनी मेहनत से इस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाया। हमारी कंट्री का साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। कंपनीज जैसे सैमसंग, एलजी, किया, hyundai हमारे साउथ कोरियन कंपनीज हैं। और इसके साथ ही हमारी कंट्री ने स्पेस रिसर्च में भी अपने कदम बढ़ाए हैं। हमारी कंट्री अपने मिलिट्री सर्विस पे भी फोकस कर रही है, इसलिए हमने एक पॉलिसी पास की है जिसमें साउथ कोरिया के एडल्ट में 18 to 35 से जो है उन्हें 2 years के लिए मिलिट्री सर्विस में सर्व करना है। इट वॉज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द नीड टू डिफेंड अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। हमारी कंट्री ने ग्रीन एम्बिशियस के लिए $30.7 बिलियन की पॉलिसी पास की है। इट इंक्लूड्स रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, energy efficient building and expansion of railway systems and improvement for waste management. हमारा डेटा बताता है कि 62% प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट होता है उसे हम रिसाइकल करके एनर्जी और मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। हमारी कंट्री को कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री से भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। अदर कंट्रीज हमारे कंट्री में लीस्ट पॉल्यूटेड है। हमारी कंट्री ने एक पॉलिसी पास की है जिसमें हमने प्लास्टिक मटेरियल को कन्वर्ट करके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बनाए। एट द एंड ऑफ ऑल दिस हमारी कंट्री एक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी का एग्जाम्पल है। इट्स कल्चर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी हैज मेड इट्स ओन प्लेस इन द वर्ल्ड। हमारी कंट्री अपने गीत, संगीत, खानों और अदर चीज़ों के लिए भी फेमस है। सोल माय सोल Next in the list we have Italy. Chair की परमिशन देता है अपना स्पीच शुरू करने के लिए। इटली की स्थापना 1831 में जियोजीनी मार्सी ने की थी। वर्तमान की वहाँ की बड़ा प्रधान का नाम है जयोजिया मेलोनी। इटली यूरोप महाद्वीप की दक्षिण में स्थित एक देश है। इटली की मुख्य भूमि एक प्रायद्वीप है। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला है जहाँ फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्लोवेनिया की सीमाएं मिल आती
सामने हमें जाहिर करा। इटली को पहले किस नाम से जाना जाता था? इटली को इटालिया इटाली प्रायद्वीप का प्राचीन नाम जो आधुनिक गणराज्य का भी नाम है। मूल रूप से केवल इटावली भूत आधुनिक के टीम पर लागू होता है। इटली में कितने देश हैं? इटली के भी भीतर दो छोटे देश हैं, सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी, राजधानी रोम है। इटली का दूसरा नाम क्या था? इटली का दूसरा नाम रोम था। रोम शहर इटली का सबसे प्रभावशाली नगर है और इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, इसलिए इटली को भी रोम देश कहा जाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं अपनी स्पीच में G20 समिट के देशों में से एक देश मेक्सिको की एनवायरमेंटल हालत और उसकी खराब हो रही स्थिति के बारे में आप सभी से कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करना चाहूँगी। संयुक्त मैक्सिकन राज्य सामान्य रूप से मेक्सिको नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर है। मैं मेक्सिको की गवर्नर था मार्की पेट्रोस। मैं यहाँ खड़ी हूँ मेक्सिको के भविष्य के लिए, हमारे प्यारे शहर मेक्सिको के भविष्य को लेकर सोचते हुए। वैश्विक उष्णता, पर्यावरण, हरित घर के गैसों के नियंत्रण, सामाजिक और आर्थिक सुधार। वैश्विक उष्णता ने हमारी पृथ्वी को अछूत रूप से प्रभावित किया है। हमें इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके सॉल्यूशन: हरित घर के गैसों के नियंत्रण में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। हमें ऊर्जा की बचत के साथ साथ शौचालयों और खाद्य प्रसंस्करण की प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से हमें शहर के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार करके हम अधिक विकासशील और समृद्ध मेक्सिको शहर का निर्माण कर सकते हैं। आर्थिक सुधार के लिए हमें सावधानीपूर्वक योजनाएं बनानी चाहिए जो वृद्धि स्थिति में सुधार करें और समाज के साथ वर्गों के लिए विकास की दिशा में कदम उठाएं। इन सभी पहलुओं के सहयोग से हम अपने मेक्सिको शहर को और भी सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ हम सब मिलकर इस महत्वपूर्ण कार्य को साकार करने के लिए कदम उठाएं और हमारे प्यारे मेक्सिको शहर को एक बेहतर भविष्य की दिशा में अग्रसर करें। धन्यवाद। थैंक यू डेलीगेट। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम। प्लीज अपनी स्पीच शुरू करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के स्थान पर खड़ी हूँ। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या हो रहा है और वहाँ की वृद्धि विकास कहाँ तक पहुँची है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं यहाँ यूनाइटेड किंगडम की गवर्नर ऑफिसर बेल्जियम वैली बनकर आई हूँ। मैं आपको इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना चाहती हूँ। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था यूनाइटेड किंगडम के 4 देशों की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सबसे गतिशील राजकोष के 4 नैतिक अन्य महत्व खजाना सरकार की सार्वजनिक वित्तीय नीति और आर्थिक नीतियों को विकसित करने और क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड के अलावा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स भी शामिल है और यूके के राष्ट्रीय समूह में 52.1% श्वेत लोग, 4.0% दक्षिण एशियाई लोग, 2.0% काले लोग, 1.2% मिश्रित लोग, 0.4% चीनी लोग और 0.4% अन्य लोग रहते हैं। अप्रैल 2023 में 0.2% की वृद्धि के बाद में 2023 में 0.2% वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन GDP में 0.8% की गिरावट का अनुमान है। अधिक व्यापक रूप से देखें तो फरवरी 2023 में व्यापक 3 महीना की तुलना में 2023 तक के 3 महीनों में GDP में कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि उत्पादन में 0.4 और निर्माण में 0.2% की वृद्धि हुई है। मई 2023 में सिर्फ 8.7% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष के 5.9 बिलियन पाउंड की तुलना में यह
दौरान यूके के लिए सबसे अधिक रक्षा हुआ था। वहाँ का जल प्रदूषण 1.34% है और वहाँ की कंट्री पॉल्यूशन 68.112 मिलियन और 2023 प्रोजेक्ट रियल जीडीपी 0.4% है। स्पेशल ड्यूरिंग रिलाइट्स SDR 3074 9.39 million. Thank you. Thank you, delegates. Next in the list we have Argentina. Please speak. Famous for its culture, food and tourism. It has really diverse culture and have incredible nature beauty. But as well as Turkey is one of the most developed nations in the world. Turkey is the 19th largest economy in the world with a GDP of roughly $906 billion. 97% of Turkey is in Asia and rest of 3% is in European country. Total population of Turkey is 8 crore 15 lakhs and 41,000. Capital of Turkey is Ankara. Cost of living in Turkey is compared to USA is 31.38%. Average income is $10,590. Average life expectancy is Turkey for males is 73 years and 40 female in 79 years. Migration rate in Turkey is -1.53%. The president of Turkey is Recep Tayyip Erdogan. Further information will be given by my friend. Thank you. Good morning everyone. I am a Turkish finance minister. I am going to tell you wind energy. Turkey has a significant wind energy potential. The country has been investing in wind powers to reduce greenhouse emissions. Most wind energy is Iran and Marmara. Solar energy. Turkey benefits from abundant sunlight. The government has introduced incentives to develop solar projects. Diversity of products, diverse climate, various crops, rice, barley, fruits, citrus fruits, apples, grapes. Vegetable, tomato, onion, industrial, cotton, tobacco. Livestock and animals products. Livestock most popular and important in Turkey agriculture. Cattle, sheep, goats, poultry are practiced across region. Milk, meat, eggs significant in agriculture economy. Favorable geography, different products, different times of year. Export and trade. Major export agricultural products, fuels, vegetables and grains in various countries, mostly Europe and Middle East. Subsidies and support to agricultural sector for boost production, improve rural livelihood and ensure food security. Research and development of institute engage in agriculture research and develops air for permanent labs. Climate change. Turkey has irregular rain. Irregular rain, minerals resources, mining, coal, iron, copper, chrome, lead, zinc, and exported. Thank you. અસ્તિત્વમાં છે 1861માં ઇટાલિયન એકીકરણ થયું. ઇટાલીમાં જાહેર અથવા રાજ્ય સંલગ્ન યુનિવર્સિટીઓ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે ડિગ્રી ઓફર કરતી શાળાઓનું વિશાળ અને આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્ક છે. ઇટલીની રાજ્ય સંચાલિત યુનિવર્સિટીઓ ઇટાલીમાં તૃતીય શિક્ષણની મુખ્ય ટકાવારી બનાવે છે અને તેનું સંચાલન ઇટાલીના શિક્ષણ મંત્રાલયની દેખરેખ હેઠળ થાય છે. ઇટાલિયન યુનિવર્સિટીઓ વિશ્વની સૌથી યુનિવર્સિટીઓમાંથી એક છે. યુનિવર્સિટી ઓફ બોલાવો 1878માં સ્થપાયેલ છે. અત્યાર સુધીની સૌથી જૂની યુનિવર્સિટી છે. 2019માં વિશ્વની ટોચની 500 સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું, જે યુનાઇટેડ અને જર્મની પછી યુરોપમાં ત્રીજી સૌથી મોટી સંખ્યા છે. થેન્ક યુ. चाइना. जापान में क्राइम्स भी बहुत सारे हैं, तो उसको लेकर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? According to 2018, जापान में जितने भी अभी क्राइम के केसेस है वो भी पहले करते थोड़ा डिक्रीज हो रहे हैं. तो अभी पहले की फाइल्स थी और अभी की फाइल क्यों सॉल्व नहीं, इतना लेट प्रोसेस क्यों चल रहा है? क्योंकि लोग डिप्रेशन में आके खुद की जान भी तो ले सकते.
और देखिए लोगों का तो यही है कि जब उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता तो सुसाइड करते हैं। So I'd like to add a point कि चाइना और जापान दोनों में ही जो डिप्रेशन और सुसाइड रेट तो बढ़ रहा है। सुसाइड रेट इज अ पर्सनल इशू, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है सोसाइटी में? गवर्नमेंट का काम है कि वो लोगों को अपने कर दे। ऐसे कि सुसाइड क्यों हो रहे हैं इसलिए आपकी गवर्नमेंट ने रिसर्च किया है। जी मैं अपना चलिए तो मतलब आगे वो हो चुका है, तो इसमें आप कैसे वो कर सकते हो इम्प्लीमेंट? ये जो क्वेश्चन है आपका कि गैंग्स कितने बढ़ते हैं, इसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज है उसमें कहीं ना कहीं गैंग्स तो होती ही है, चाहे फिर वो कोई भी गैंग। क्राइम्स बढ़ते ही है, जैसे इंडिया में एक्सक्यूज ना लेंगे आप अपने जवाब को दूसरी कंट्री में ना लेंगे तो आप अपनी कंट्री के पर्सनली जवाब दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए जो गैंग्स जो होती है तो deviating from the central deviation from the central नहीं मैं ऐसा कहना चाहता हूँ गैंग्स तो दूसरी कंट्रीज की होती हैं, लेकिन जो जापान की जो गैंग ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी ज़्यादा बुरी होती है कि वो खुलेआम मर्डर करती हैं और उनको की पता भी नहीं लगता है और ना गवर्नमेंट एक्शंस भी लेती है। गवर्नमेंट इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जितना जल्दी हो सके इसका सॉल्यूशन हम ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी सॉल्व हो सके तो सॉल्व करेंगे और इकोनॉमी ग्रोथ का साथ ना करें। तो जो हमारा मेन एजेंडा था उससे हम काफ़ी ज़्यादा डेविएट हो रहे हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है एजेंडा से रिलेटेड तो वो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ओके चलिए टॉपिक What is unique about Indian climate? ऐसा तो क्या है इंडियन क्लाइमेट में जो ऐसा कुछ बन रहा है? ऐसे एग्रीकल्चर हो रही है। जी आप अपना क्वेश्चन प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से या फिर क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? What is unique about Indian climate? तो इंडियन क्लाइमेट के साथ अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं बताऊं कि इंडिया सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर वो करता है। मोस्ट ऑफ यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब एग्रीकल्चर में बेस्ड होते हैं और वहाँ यहाँ का एजुकेशन का उनको रहता नहीं है। सबको ये लगता है कि एग्रीकल्चर में से फिर हम निकल पाएंगे और किसान आंदोलन आप लेके चल सकते हैं। जब गवर्नमेंट्स ने उनकी डिमांडें पूरी नहीं करी थी तो किसान आंदोलन फिर चला था, फिर वो भी जैसे जैसे अभी ब्रेक है, 10 मिनट का ब्रेक। आप लोग बाहर जा सकते हैं।